This program is brought to you by Aircel, your world of possibilities. Aircel Public Connect. নমস্কাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এয়াৰচেল পাব্লিক কানেক্টলৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই শান্তনু মহন্ত আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰকৃতি পূজা ছট পূজাৰ ওপৰত হয় এই সন্দৰ্ভত আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আৰু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি থকা হৈছে ছট পূজা কিন্তু কি এই ছট পূজা বা কিদৰে উদযাপন কৰা হয় কি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহায় এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পৰ্কেও নিশ্চিতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে চাই লওঁ আহক ছট পূজা সন্দৰ্ভত ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিয়ে যুগুতোৱাই ওলোৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন উত্তৰ ভাৰতীয় হিন্দু লোকসকলৰ এক পবিত্ৰ স্বৰ্গীয় উৎসৱ এতিয়া চৌদি ছট মাইয়াৰ বন্দনাৰে মুখৰিত মূৰত ছট পূজাৰ নানা উপকৰণৰ নৈবেদ্য কঢ়িয়াই দূৰ দূৰণিৰ পৰা নৈঘাটলৈ আহিছে অগণন ভক্ত পাৰ হোৱা দুদিনত ঘৰৰ ব্ৰত পূজা সমাপন কৰি মংগলবাৰে সপৰিয়ালে অষ্টগামী সূৰ্যক প্ৰণাম কৰিবলৈ নৈঘাটত সমবেত হৈছে নৰনাৰী পৌৰাণিক কাহিনীৰ বিশ্বাস অনুসৰি ভগৱান শিৱপুত্ৰ কাৰ্তিকক লালন পালন কৰা ছগৰাকী অভিশপ্ত ঋষিপত্নী হৈছে ছট মাইয়া छठी माई पर विश्वास है हर मनोकामना पूरा करता है कौल लगता है सेब लगता है कच्चू लगता है पानी फल लगता है और पकवान में ठकुआ चढ़ता है भुसबा चढ़ता है पिरुकिया चढ़ता है মঙলবাৰে দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰৰ লগতে মহানগৰীৰ শুক্লেশ্বৰ ঘাটত পালন কৰা হয় ছট পূজা বিভিন্ন পুষ্প নানা কাৰুকাৰ্যৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ সুশোভিত কৰি ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে সকলোফালে চকু ৰাখিছে পূজা কমিটিয়ে बहुत अच्छा है घाट भी ठीक से सूखा है और हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं महीनों से इस कार्य में लगे हुए हैं ठीक है हमारे गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटी है हमारी अपनी सिक्योरिटी भी है हाँ कल्चर प्रोग्राम भी है बम्बे से कलाकार को बुलाया गया है পৌৰাণিক কাহিনীৰ আঁত ধৰিয়েই যুগ যুগ ধৰি চলি থকা পৰম্পৰাতে মঙলবাৰে বিলীন হৈ গৈছে মহানগৰবাসীও মাজ আকাশৰ পৰা বেলি পশ্চিমলৈ গতি কৰাৰ লগে লগে মুখৰিত হয় শুক্লেশ্বৰৰ ঘাট ভক্তিভাৱেৰে সকলো ভক্তই কামনা কৰে শান্তি সমৃদ্ধিৰ বাবে বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ মাজতে বান্ধ খাই থাকে সমাজৰ ৰীতি নীতিসমূহ সেই ৰীতি নীতিসমূহকে ধিয়াই সমাজৰ সেই পৰম্পৰাৰ বাবে আজি নদীৰ পাৰত গোট খাইছে সকলোৱে ছট মাইয়াৰ পূজা কৰিবলৈ সংগীত মুখৰিত পৰিৱেশত আনন্দ উচ্ছল হৈ সকলোৱে পূজা কৰিছে ছট মাইয়াৰ কেমেৰাত আৰিৰ সৈতে ৰীতা দেৱী ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি গুৱাহাটী হয় আছিল আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিদৰে ছট পূজাৰ বাবে ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটিছিলে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ অংশত গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি আজি কথা পাতিম আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমাৰ অতিথিসকল উপস্থিত আছে পোনপ্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিবলৈ লৈছোঁ বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া এডভাইচাৰ আছাম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ ৰাজেশ গুপ্তা ডাঙৰীয়া ক্ৰিয়েটিভ হেড ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমাৰ আন এগৰাকী অতিথি আহি উপস্থিত হ'ব কিছু সময় পূৰ্বে আমি কিছু সময় পিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত চিনাকি কৰাই দিম পোনপ্ৰথমে আহিব বিচাৰিছোঁ বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত অতি উলহ মালহেৰে ছট পূজা পালন কৰা হৈছে গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে গতিকে আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত যে ছট পূজাৰ যি এই ধৰণৰ এক আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে সকলোৱে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মাহাত্ম্যৰ সম্পৰ্কে কি ক'ব আপুনি এই ছট পূজাটোৰ মাহাত্ম্য আপুনি যদি চাব যায় মাহাত্ম্য মানে এইটো একচুৱেলি এইটো পূজাৰ এইটো ৱাৰ্শ্বিপ আছে দিছ ইজ দ্য পূজা মানে ৱাৰ্শ্বিপ ফৰ দ্য নেচাৰ
যেটো আমি নেচাৰ আমি যেটো আমি কওঁ কি আমাৰ 5টা তত্ত্ব এটো আমাৰ শৰীৰটো বনি আছে পানী আছে জল আছে অগ্নি আছে বায়ু আছে আকাশ এই যে পানী জল আৰু অগ্নি অগ্নি মানে এটো সূৰ্য তো এটো অগ্নি আৰু জল দুইটাই মিলাই এখন পূজা য'ত আমি এটো আজি পৰা এটো পূজা নহয় আপনি যদি পুরাণ যদি চায় আপনি মহাভারত কালে যদি যায় মহাভারত কালত আপনার এটা আলেখ আছে কুন্তি মহারানী কুন্তি প্রথমবার এটো পূজা করেছিল সূর্য ভগবানক এটো অর্ঘ দিছিল সূর্য ভগবানক পূজা করেছিল এটা মনোকামনা করেছিল সেই মনোকামনাটো আছিল কৰ্ণ পুত্ৰ ৰত্ন প্ৰাপ্তি হৈছিল সেই দিনৰ পৰা আজিলৈকে এই উৎসৱখন খুব উৎসাহতে মনাই আছে সেকেন্ড এটা और আমি মহাভারতত পাইছো যেতিয়া দ্রৌপদী সময়ত যেতিয়া আপনি দেখিলে পাণ্ডৱ কৌৰৱ যেতিয়া যুদ্ধ হল পাণ্ডৱ তো সবে একদম এভরিথিং ইজ ডিস্ট্রয়েড একো না আছিল পিছত দ্রৌপদীয়ে এটো কৈছে ছট মাইয়া আমি পূজা কৰিম যদি ছট মাইয়া আমাক ভাল কৰি তেতিয়া হলে আমি ছটটো পূজা কৰিম সেই দিনৰ পৰা আপনি পাণ্ডৱ और আমার কৌৰৱ ওপৰত পাণ্ডৱ যেটো বিজয় আছে সেই দিনৰ পৰা আজিলৈকে ছট পৰ্বটো মনাই আছে और মই এটা ইতিহাসৰ এটা কথাটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰো এখন তো হল পুৰাণৰ কি পুৰাণৰ কথা ইতিহাসৰ কথা আছে ঔৰংগজেব সময়ত একবাৰ ঔৰংগজেব যিমান মন্দিৰ মছজিদ মানে যিমান ধাৰ্মিক স্থল আছে বিশেষকৈ মন্দিৰ গীৰ্জাঘৰ এইবিলাক সব নষ্ট কৰি আছে যেতিয়া এটা মন্দিৰটো হি যেতিয়া গৈছিল উচ্ছেদ কৰিব কাৰণে তেতিয়া ৰাইজে কৈছে যে এইটো মন্দিৰখন আপুনি উচ্ছেদ নকৰিব কৈছে কিয় কৈছে এইটো সূৰ্য ভগৱানৰ এইটো মন্দিৰ হয় আৰু সূৰ্য ভগৱানৰ ইমান শক্তি আছে কি সূৰ্য ভগৱানে যি আমি কিবা যদি আমি কওঁ ইচ্ছা কৰোঁ সেই ইচ্ছাখন আমাৰ পূৰণ হয় ঠিক কৈছে তোমাৰ যদি ইমানেই ইচ্ছা যদি পূৰণ কৰে মোৰ এটা ইচ্ছা সূৰ্য ভগৱানে পূৰণ কৰিব পাৰে নেকি তেতিয়া ৰাইজে কৈছে ঠিক আছে কি কৈছে কি এই মন্দিৰৰ দ্বাৰখন পশ্চিম মুখত আছে সেইটো পূৰব মুখত হৈ যাব নেকি সি কৈছে নিশ্চয় হৈ যাব ৰাইজে কৈছে নিশ্চয় হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে যদি কালি লেকি যদি হয় তেতিয়া আমি মানি লিম और সেইখন দেখা গৈছে এটা ইতিহাসৰ উল্লেখ আছে কি সেইটো দেখা গৈছে কি এই মন্দিৰৰ যেটো দৰজাখন আছে সেইটো ৰাতি ভিতৰত পূৰফালে গুচি গ'ল সেই দিনৰ পৰা ঔৰংগজেব এটা বিলাক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ য'ত হিন্দু দেৱী দেৱতা কেতিয়াও মানা নাই মন্দিৰটো নষ্ট কৰিছিল সেই ঔৰংগজেবখন সেই দিনৰ পৰা ছট মাইয়া পূজা আমি সূৰ্য ষষ্ঠী যেটো কয় দ্যাট ইজ সূৰ্য উপাসনা সেই দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আজিলৈকে চলি আছে এণ্ড দিছ ইজ দ্য ভেৰি ট্ৰু ৱৰ্শ্বিপ ফৰ দ্য নেচাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক आइसो राजेश गुप्ता रंगोरिया रसोले के राजेश जी देखा गया है कि असम में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पूजा तो आप अपने देश की विभिन्न जगह की पूजा आप देख चुके हैं और क्या बताना चाहोगे कि कैसे देश के अन्य प्रांतों में कैसे मनाया जाता है छठ पूजा नहीं हमने जो अभी कवरेज के दौरान प्रोग्राम बनाने के दौरान पूरे गुवाहाटी घूमने का मौका लगा तो मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार में है वही स्वरूप है मैं तो कुछ मामले में बोलूँगा फैंसी बाजार के इलाके में देखा अद्भुत लगा आपको मैं बता रहा हूँ कि अद्भुत है यहाँ पर भी आयोजन में श्रद्धा में कोई कमी नहीं है वो जो विधि है वो पूरी विधि को जो बिहार में होता है पूर्वी यूपी में होता है वो आसाम के लोग भी मना रहे हैं हाँ वही निकटता है इस पर्व से इस प्रकृति पर्व से जो निकटता बिहार के श्रद्धालुओं में है जो झारखंड के है पूर्वी यूपी के है तो श्रद्धालुओं की भक्ति में आस्था में या उनकी विधि में पूजा करने के कोई फर्क नहीं है वो पूरी तन्मन्नता से सूर्य भगवान क्योंकि प्रकृति पर्व है ये जो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सूर्य है जो प्राचीन काल से जब मानव पैदा हुआ है जब सभ्यता संस्कृति बढ़ी है सूर्य उसी समय से है और सूर्य के प्रकाश से ही मानव जीव और उत्पत्ति हुई है तो जब सूर्य को देखता है तो लोग सुबह होता है और सूर्यास्त से शाम होता है तो ये सब कोई जान रहा है उसी के चक्र से सूर्य के प्रकाश से ही लोग जीवन चक्र चल रहा है तो कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं है लेकिन कहीं दबा हुआ था कहीं उभरा हुआ था रूप है तो वही जैसा हम लोग को बिहार में देखने में मिलता है जो झारखंड में मिलता है पूर्वी यूपी में मिलता है और बॉम्बे में भी वही गुवाहाटी में देखने को मिला और कुछ मामले में तो यहाँ बड़ी व्यवस्थित तरीके से हो रहा है फैंसी बाजार में इलाके में हमने देखा मालेगांव इलाके में बड़े व्यवस्थित प्लानिंग में हो रहा है बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और सबसे हमको आश्चर्य लगा आप एक रिपोर्ट में भी देखेंगे होंगे या दिखाएंगे आप शायद कि यहाँ फैंसी बाजार के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कितने भव्य तरीके से लोग कर रहे हैं और तो और भक्ति देखिए एक बार राम जी की सेना ने वानर सेना ने लंका विजय के लिए मतलब सेतु बनाया था
पत्थर के टुकड़े बांध लोगों ने और लंका विजय किया और यहाँ में था। भी वहीं पे यही भक्ति वहां विजय के लिए था, यहाँ सूर्य उपासना के लिए है। वो नदी पर बांस का उन्होंने तैरता हुआ पुल बनाया है और वो उस पार जाकर वो खाली मैदान में टापू नुमा जाके सूर्य की आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद। इस अभी एक मतलब फोन कॉलर है हम लोग के बीच में, हम ले लेते हैं फोन। हेलो हेलो, आपने कोने कॉल है कोर पर कॉल है? हम संजय शर्मा तिनसुकिया से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। तो हमें ये इसका जो सूर्य षष्ठी व्रत है, हाँ जी, इसको छठ पूजा क्यों कहा था, इसके बारे में हमें पूछना है। छठ मैया के बारे में क्यों बोलते हैं इसको? वैसे तो सूर्य षष्ठी व्रत है ये। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छठ मैया और सूर्य की उपासना है। छठ मैया इसलिए बोलते हैं कि वो जो छठ जो दी वो सूर्य देवता की बहन थी। अच्छा, तो आज क्या होता है कि छठ मैया सूर्य देवता की बहन थी, तो ये सूर्य की पूजा है। और साथ साथ में वो 3 दिन का ये त्यौहार होता है। एक्चुअली ये 3 दिन का त्यौहार होता है। तो 3 दिन के त्यौहार में क्या होता है कि पहले दिन लोग व्रत करते हैं, दूसरे दिन भी व्रत करते हैं, तीसरे दिन भी व्रत करते हैं। तो सूर्य भगवान के साथ साथ उसकी बहन की भी पूजा होती है, इसीलिए इसको छठ मैया के नाम से पुकारा जाता है। हाँ हाँ, कहानियां अलग अलग है, इनकी कई इससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। हम बताना चाहेंगे, एक तो कहानी ये है और एक कहानी है कि एक ऋषि की 6 पत्नियां थी, उनको संतान नहीं हो रहा था। तो संतान उत्पत्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना एक तालाब में या नदी में वो कर रही थी। तो उस समय जो शिव के तीसरा नेत्र है, उस नेत्र से गुस्से में थे, उस नेत्र का जो गुस्सा निकला, आक्रोश निकला, उसका अंश उन 6 लोगों के नाभि से उनसे स्पर्श हुआ, जिससे वो गर्भ ठहर गया और कहा जाता है कि कार्तिक जी की उत्पत्ति हुई। हाँ, और उसी दौरान जो जो फल उनका स्पर्श हुआ उन 6 देवियों का, वो फल को ही छठ पूजा में उपयोग में लाते हैं। चाहे इख हो, चाहे आटे के समान हो, इस तरह के फल जो हैं वो फल उन 6 देवियों से जो स्पर्श हुआ उसको ही इस छठ पर्व में उपयोग में लाते हैं। छठ मैया भी इसीलिए बोलता है। नहीं, इसका एक विशेष महत्व है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए छठ मैया की पूजा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि गुवाहाटी में एक मुस्लिम लेडी ने, अच्छा, उसकी संतान जो है सिर्फ जो है बच्चियां ही हो रही थी, कोई लड़का नहीं हो रहा था। तो किसी पड़ोस ने, बिहार के समुदाय का कोई साहू था, उन्होंने कहा कि अगर ये तुम बहन ये प्रोग्राम करो तो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। तो बोली मैं तो मुस्लिम समुदाय से हूँ, मैं ये कैसे करूंगी? तो उसने कहा तुम ये मान के देखो। तो उसने माना कि अगर छठ मैया मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति करेंगे तो मैं उसकी पूजा करूंगी। और उसके घर पुत्र रत्न हुआ। और वही लेडी आज भी आप जाके देखें तो फैंसी बाजार के अंदर में वह लेडी ही इस पूजा को कर रही है छठ मैया के नाम से। तो छठ मैया को पूजने का अर्थात संतान की प्राप्ति है। ये तो है ना, जैसे धर्म की बात है, ये प्रकृति पूजा है। और इस्लाम में भी मतलब स्वरूप का एक विरोध होता है, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बिहार, झारखंड और यूपी बहुत जगह इस्लाम के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी सूर्य की आराधना करते हैं। हाँ। अब ईरान इराक में पारसी लोग हुआ करते थे, वो सूर्य की आराधना करते थे। तो सूर्य तो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और सबसे पुराने देवी और भगवान है। हाँ, हम लोग का ये डिस्कशन जारी रहेगा, लेकिन इसके बेस में ले लेते हम एक हम लोग का और एक प्रतिवेदन है, हम देख लेते हैं वो प्रतिवेदन। जी हाँ, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सचमुच में सूर्य भक्तों के जज्बा का जीता जागता प्रमाण है। ये दृश्य असम के गुवाहाटी की है, जहां पिछले 4 सालों से ब्रह्मपुत्र नदी पर हर वर्ष बांस की तैरती पुल का निर्माण किया जा रहा है। भक्ति की यह शक्ति फैंसी बाजार के पास पूर्वोत्तर प्रगतिशील मंच ने कर दिखाया है। आज देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र तट पर जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने एक बार लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने बानरी सेना के द्वारा राम सेतु का निर्माण कराया था, उसी तरह ये हमारी पूर्वोत्तर प्रगतिशील मंच की सेना ने जो है आज एक यहाँ पे बांस का एक बहुत बड़ा भव्य पुल बनाया है, जिसपे से सभी व्रतधारी, दर्शनार्थी तथा जितने भी यहाँ पे समाज सेवी सभी लोग हैं वो हमारे साथ एक साथ यहाँ पे आएंगे और सभी लोग जो है इस व्रत में शामिल होंगे। विज्ञान युग के भक्तों ने भी भक्ति और आस्था की शक्ति से लोगों का परिचय कराया है। इस भक्ति को असम ही नहीं बल्कि पूरा देश सलाम कर रहा है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। भक्तों ने, आपने देखा भक्तों ने किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर अस्थायी तैरता हुआ बांस का पुल बनाया है, सिर्फ भक्ति के लिए। मैं राजेश गुप्ता, गुवाहाटी से फ्रंट टीवी के लिए।
আছিল আমাৰ অন্য এক প্ৰতিবেদন। গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিদৰে উলহ মালহেৰে ছট পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। পুনৰ উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈকে। এইখিনিতে আমাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ আন এগৰাকী অতিথি ডক্টৰ আৰ পি সোণী, চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। আমি এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছোঁ, গতিকে আপোনাৰ লগত নিশ্চিতভাৱে এই সন্দৰ্ভত আমি বাৰ্তালাপ কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আহিব বিচাৰিছোঁ পুনৰ राजेश गुप्ता डांगरिया उस लेके। राजेश जी, जो आपने स्टोरी अभी अभी हम लोगों ने देखा हम लोगों के टेलीविज़न के पर्दे में, तो क्या कहेंगे किस तरह के ये जो पुल है, तो पुल किस लिए बनाया गया है और कैसा है? आप तो यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को घेरा हुआ है और ये फैंसी बाजार के पास से गुजर रहा है। यहाँ के लोकल जो पूर्वोत्तर भारतीय हैं उनका जो आयोजन है वो उस जगह जो मतलब साफ सफाई नहीं है था, तो उन्होंने उपाय क्या किया, जो बांस आता है बहकर उस बांस को लाखों रुपया खर्च करके उन्होंने पुल बनाया जो 650 फीट लंबा, चौड़ा 35 फीट, गहराई। तो मेरे को प्रश्न हुआ कि क्या ये डूबेगा नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण का कमाल है और वो डूबता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए कि वो भगवान की आराधना अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो वो टापूनुमा जो जगह है नदी के उस पार, हाँ, नदी के उस पार वो जाते हैं उस पुल से और बड़े श्रद्धा से उन्होंने अपना आराधना के लिए एक जगह निश्चित किया है और आराधना करें। जैसे आज सूर्यास्त की आराधना लोगों ने किया, अर्घ दिया, कल सूर्योदय का अर्घ देंगे। तो ये जो था उन्होंने पुल बनाया। आपको स्मरण हो लंका विजय के दौरान हनुमान जी और वानर सेना ने जिस तरह से राम को सहयोग किया था, तो वहाँ लंका विजय के लिए, सत्य की विजय के लिए किया था। यहाँ आस्था, सूर्य की आस्था के प्रति, तो आस्था के लिए तो दंडवत चलते हैं, लेकिन एक पुल बनाना, बांस का पुल बनाना और फिर उस पर से जाना, एक डर तो लगता है। आदमी एक नदी के ऊपर से कोई पुल होता है, गाड़ियां जाती है, तो थोड़ा लोगों को सोचना पड़ता है, अरे पुल के ऊपर से जा रहे हैं, जो नदी है उसके पुल के ऊपर से। यहाँ बांस का है, कोई उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और वो तैर रहा है और उस तैरते हुए पुल से ऊपर से हजारों ये जो है जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं और उस पार जो टापूनुमा वहाँ पे बैठ के आराधना करते हैं। ये बड़ा मेरे को बड़ा रोचक रिपोर्ट लगा और इसलिए मुझे तुरंत इसको कवरेज करके देने का मौका लगा। নিশ্চিতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, য'ত আস্থা আছে, ভক্তি আছে, তাত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তেখেতসকলে গঢ়ি তুলিছে যিসকল ভক্ত আছিলে। আৰু এটা আচৰিত ধৰণৰ এখন ইতিমধ্যে ৰাজেশ গুপ্তা ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰিছে যে লংকা বিজয়ৰ সময়ত যিদৰে এখন সেই ধৰণৰ দলং বান্ধি লোৱা হৈছিলে, গতিকে ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তবান ৰাইজে সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি পুনৰ আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈকে। এবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ আৰ পি সোণী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছট পূজা যদিও আমাৰ ভক্তিৰ লগত জড়িত বা শ্ৰদ্ধাৰ লগত জড়িত, কিন্তু তাৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নথকা নহয়। যিহেতু সূৰ্যক আৰাধনা কৰা হয় বা সূৰ্যক আৰাধনা কৰাৰ লগে লগে বহু ক্ষেত্ৰত সূৰ্যৰ যি ৰশ্মি আছে সেই ৰশ্মিসমূহ কিন্তু বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত। আমাৰ লগত আমি আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেৰ কথা কওঁ বা বিভিন্ন ৰেৰ কথা কওঁ। গতিকে এই আৰাধনা কৰাৰ ফলত যি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব, কি ধৰণৰ উপকৃত হয় সাধাৰণ ৰাইজ? চাওক, ছানলাইট যোনটো ৰে ওলায় তাৰ পৰা, তাৰ বিভিন্ন ধৰণে আছে। আমি জানো A, B, C আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন আছে, তাৰে বেনিফিট আছে আৰু এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজো ক'ব পাৰোঁ। যদি এক্সেচিভ ইউজ কৰা হয় কিছুমান আমাৰ গাৰ কাৰণে বেয়া বস্তুটো, কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে। আৰু আমি আজি মেক্সিমাম ছালৰ বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টত বহুত ভাগ ইউজ কৰা হৈছে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন। আৰ্টিফিচিয়েলিও পোৱা যায় আল্ট্ৰাভায়োলেট A, আল্ট্ৰাভায়োলেট B, এইটো গোটেইকেইটা আমাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিত আছে। ধৰক আপোনাৰ ভিটিলিগো, বগাচৰম যোনটো কোৱা হয়, এইটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেও পেচেণ্টক কওঁ দৰৱ লগাই ৰ'দত থাকিব, ৰ'দ দিব, ছান এক্সপ'জ কৰিব। যেনে ধৰণৰ ছৰিয়াছিছ বুলি এটা বেমাৰ আছে যাৰ কোনো ইটিঅলজি নাই, আনন'ন কাৰণ, আৰু কিউৰেবল নহয় 100%। কিউৰ যদি মেডিচিন আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট লয় অলপ দিন ভাল থাকিব, আকৌ ৰিলেপ্স কৰিব। ৰিলেপ্স ইজ দ্য ৰুল, আমি পেচেণ্টক বুজাওঁ। তো এইবিলাক ট্ৰিটমেণ্টত আমি ছানলাইটৰ মানে হেল্প লওঁ। এইটো ৰেডিয়েশ্যন ছানলাইট মানে মলম লগাই বা দৰৱ খাই পেলাই যদি ছানলাইট লোৱা যায়, এক্সপ'জ কৰা যায় ছানলাইটত, তেনেহ'লে বেমাৰটো সোনকালে ভাল হয়। আৰু যে ছট পূজাত যে মানুহ কয় যে নিশ্চয় কিবা ভুল কৰিছা কাৰণে তোমাৰ এই বগা বেমাৰটো হৈছে, আমি সাধাৰণতে শুনিবলৈ পাওঁ এই বগাচৰম যোনটো বুলি কোৱা হয়। তেতিয়া ধৰক এতিয়া কি হয়, ছট পূজাত কি কৰা হয়, ইভিনিং গৈ পেলাই সূৰ্যক নমস্কাৰ কৰা হয়, ৰেটো গাত পৰে, ডাইৰেক্টলি ৰেটো গাত পৰে, আকৌ ৰাতিপুৱা তেনেকুৱা। তো এইটো নহয় যে অকল মানে কিবা হেৰি কাৰণে হৈছে, চাইণ্টিফিক কজ আছে এইটোৱে যে ৰেটো আহিলে আপোনাৰ গাৰ বহুতখিনি বস্তুৱে ভাল কৰিব পাৰে। ডিছইনফেকশ্যন ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগৰ ৰেটোৰ কিবা বিশেষ আছে। ধৰক দুপৰীয়া কি হয়, ছানলাইটটো ডাইৰেক্ট মানে আমাৰ হেৰিত নপৰে, ভাৰ্টিকেল থাকে। এনেকুৱা হ'লে তাৰমানে কি ৰাতিপুৱা ভাগত গোটেই একদম ভালকৈ আহে বা সন্ধিয়া ফালে ভালকৈ আহে। এনে দুপৰীয়া সময়ত বস্তুত কি ওপৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট পৰে। এইটো আপোনাৰ মানে আপুনি থিয় হয়, ধৰক
সন্ধিয়া সময়ত ৰাতিপুৱা গোটেই আপোনাৰ গাটো কভাৰ হৈ যাব। डॉक्टर साहब एक प्रश्न उठता है, ये मतलब ये जो छठ पूजा है उसमें ही करने से होता है या डेली जो करते हैं बोलते हैं सूर्य पर का अर्घ डेली देना चाहिए, उससे होता है क्या? डेली के बारे में कुछ बताएंगे? डेली लेना बहुत ही अच्छा है। यदि आप सुबह का समय का यदि आपका रे लेते हैं, चाहे वो जल के माध्यम से लो, भगवान को प्रे करके लो, या ऐसे दवा लगा के बैठो, हमारा जो मेडिकल साइंस बोलता है रे पढ़ना चाहिए शरीर के वो ऊपर। कितने बजे का टाइम, किस समय उसका होना चाहिए वर्टिकल? सुबह आइडियल होता है सुबह जब सूरज उदय होता है उसके 1 घंटे के बाद से लेकर 3 घंटे के बीच में। तो आइडियली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि 7 से 10 के बीच में, मॉर्निंग टाइम में 7 to 9, 2 घंटा का बीच में जो होता है, तिरछा पड़ता है किरण उसका, तो उसमें उसका ज्यादा बेनिफिट होता है, वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं दवा लगाओ, आधे घंटे के बाद में 2 मिनट धूप दिखाओ। अच्छा, इसी के लिए विदेशों में देखते हैं कि आजकल बात क्या हो गया, समुद्र के किनारे में आप देखोगे, समुद्र के किनारे बात, ये तो मतलब सूर्य देवता की विशेष कृपा है भारत में कि यहाँ पे सूर्य होता है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में तो और भी कृपा है, सबसे पहले आता है सूर्य उगता है। डॉक्टर मुझे बताया ना कि सूर्य से वैज्ञानिक लाभ, एक तो वैज्ञानिक लाभ और छठ कि हमारी जो ये महोत्सव है या पूजा है उसके उससे संबंध कैसा है। मैं आपको बताऊं कि यह जो है छठ की पूजा कार्तिक महीना इसके शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले आप देखिए तो बहुत गर्मी थी। अच्छा। अब ये शीतकालीन, मतलब अब सामने शीत आने वाला, जाड़ा आने वाला है, ऋतु बदल रही है। तो जब मौसम में बदलाव आता है और पहले सूर्य की तेज धूप होती थी, कोई सूर्य की धूप को ले नहीं सकता था, लेकिन अब ठंडे में सूर्य की धूप लेनी आवश्यक है और ये आज से ही शुरू करना है। इसलिए ये बहुत ही मतलब सिंबॉलिक है। हम कह सकते हैं कि आज के दिन से ही हम सूर्य की पहले उपासना करें और पूरे जाड़े भर हम सुबह, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एकदम मॉर्निंग में हम सुबह की किरणों का लाभ लें तो उसका वैज्ञानिक लाभ मिलेगा और विटामिन डी भी होगी, हमारी हड्डियां और मजबूत। आर्टिफिशियल हीटर की हीट लेने से तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सन बात जो है, सन बात करना कहीं ना कहीं इस पर्व के पीछे है, ये पीछे है कि सन लेना चाहिए, कितना जरूरी है। पूजा के माध्यम से ये कहीं ना कहीं बताया जाता संदेश है। नहीं देखिए, जितना भी हम लोगों के हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में उसमें वैज्ञानिक तर्क है, लेकिन जो बोलते हैं सब, एक छोटी सी बात बोलूंगा, जैसे लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बीच में घी नहीं खाना चाहिए, জুঠা বস্তুত মানে ঘি দিব নাপায়, হয় না, আগতে ল'ব লাগে, মানে মাছতে ল'ব নালাগে। কেলে ধৰক এইটো মানে স্লিপাৰী নহয় জানো বস্তুটো, ঘিটো স্লিপাৰী হয়, ঠিক আছে। আপনি প্ৰথমতে খায় তো প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ ফুড পাইপটো আছে এটা লেয়াৰ এটা বনি যায়, স্লিপাৰী হৈ থাকে। আপুনি যেতিয়া প্ৰথমতে এনে শুকানকৈ খালে ঘি নিদিয়াকৈ, তেতিয়া ড্ৰাই এটা লেয়াৰ বহি গৈ থাকে, তেতিয়া ছাডেন আপুনি যেতিয়া স্লিপাৰী বস্তু দি দিয়ে বস্তুটো কাঁহ আহি যায়, হয় নাই? তো এইটো কিন্তু মানুহ আমি কি কওঁ যে নাই, ঘি ভগৱানৰ বস্তু প্ৰথমত খাব লাগে, মানে কিন্তু এটো সাইন্টিফিক কয় এটা আছে, পুশিং ক্যাপাসিটি টু লোকবিশ্বাসৰ লগতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে, প্ৰত্যেকটা বস্তু আছে যে ভালকে जो मौसम परिवर्तन का कहा, और परिवर्तन में अब ठंड होगा तो लोग घर में दुबकेंगे और कुहासा आएगा तो सन मिलेगा नहीं जो होना चाहिए, और उसमें हम लोग सूरज की ताप खोजते हैं। हाँ, इसमें देखो विज्ञान, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनको दौड़ो, क्योंकि सूरज की किरण से जो निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाता है सूर्य का। ये आपको जो वैज्ञानिक बल्ब से नहीं हो पाएगा। इसी के लिए कहा जाता है सन की रोशनी, सूर्य की रोशनी डेली शरीर में लेना चाहिए, जो भी, और घर पे भी जाना चाहिए। आपको देखिए, इसी के लिए वास्तु के अनुसार भी कहता है ऐसा घर होना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी जाए। इसलिए इसके लिए पीछे वैज्ञानिक वही कारण जो डॉक्टर साहब कहते हैं, जो कोना में जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो सूक्ष्म है, उसको कैसे मारेंगे? आप तो डंडा से मार नहीं सकते हैं। तो सूर्य की रोशनी उस सूक्ष्म चीज को जो हमारे शरीर को, हमारे भोजन को नुकसान कर सकता है, वो सूर्य की रोशनी उसको नुकसान कर देगा जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो हमारा एक चीज ऐड करूंगा, एक चीज ऐड को, एक लाइन कि ये जो चीज है ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो तो वैज्ञानिक थे, तो हमारी जो परंपराएं या पुरातन पद्धति है उसमें कहीं न कहीं विज्ञान के साथ और धर्म के साथ समावेश था, जिसका कि मानव समाज को लाभ मिलता था। इसीलिए छठ पूजा का बहुत ही महात्मा है। धन्यवाद। हमारे और एक दर्शक है फोन लाइन पे। हेलो हेलो, हाँ, আপুনি কোনে ক'লে, ক'ৰ পৰা ক'লে? মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ। মই মানে এই ভিডিঅ'ত বহি থকা মহান ব্যক্তিসকলৰ যে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে 20 পৰা 25% ব্যক্তিয়ে ছট পূজা কৰে, 25% ফেমিলিয়ে ছট পূজা কৰে। কিন্তু বিশ্বত তেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি আছে য'ত প্ৰায় 50% ফেমিলিয়ে ছট পূজা কৰে, সেই কাণ্ট্ৰিটো কি? হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আমাৰ দেশত হয়তো 20 পৰা 25% মানুহে ছট পূজা কৰে, কিন্তু পৃথিৱীৰ আন এখন দেশত হয়তো 50% মানুহে ছট পূজা কৰে। গতিকে
মানে একচুৱেলি প্ৰবাসী ভাৰতীয় আছে তাত কি আছে জনসংখ্যাটো ইমান ডাঙৰ যি নহয় পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে যদি আমি দেখিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতটো একদম পপুলেশ্যন ৱাইজ টো বহুত ডাঙৰ তো ফিজি এণ্ড মাৰিছাছ খুব সৰু দেশ তাতে মেক্সিমাম প্ৰবাসী ভাৰতীয় আছে এইকাৰণে তাত 50% 60% আছে ইয়াতেও যদি 25% মানে কৈছে ঠিক আছে মানি ল'লো কথাটো লেকিন 25% বেছি আছে আজি গুৱাহাটীত মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ গুৱাহাটীত আজি এই মানে ঘাট ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি আপুনি আজি কিমান ছট মানে ব্ৰতধাৰী আছিল মোৰ এটা এছেছমেণ্ট আছে 2 লাখ মানুহ হৈছে টোটাল গুৱাহাটী আনঅফিচিয়েল পপুলেশ্যন আনঅফিচিয়েল মই কৈছোঁ 20 লাখ আছে 10% মানুহ গুৱাহাটীত আছে প্ৰত্যেক প্ৰান্তত মানে অসমত প্ৰত্যেক প্ৰান্তত ইভেন অৰুণাচলত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ পুৰা আছে বিহাৰ আছে লাহে 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 বস্তু যেতিয়া এইটো মানুহে গম পাই আছে কি একচুৱেলি এইটো সূৰ্য উপাসনা এইটো ছট পূজা চাই ফেষ্টিভেল তো কি আছে কি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যিটো সম্প্ৰদায় মানে সম্প্ৰদায় নিৰপেক্ষ হয় প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে যোনে আজিলৈকে মানা নাহিও মানে আছে তো লাহে 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 এইটো প্ৰচাৰ প্ৰচাৰটো বঢ়ি আছে আৰু মই ভাবোঁ কি এইটো নিকট ভৱিষ্যত মানে বেছি দিন সময় নালাগিব 50% থেকে বেছি এইটো আমি পাম বাৰু আৰু এটা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰতো समन्वय भी बढ़ा रहा है इस पूजा वो तो अलग बात है ना सबसे बड़ी बात है सूर्य की हम लोग जो प्रारंभ चर्चा करने के पहले हम लोगों ने किया सूर्य की उपासना जो है ये आज नई बात नहीं है जो ये तो उत्तर भारत का असर देख रहे हैं सूर्य की उपासना पूरे दुनिया में जहाँ हिंदू समाज नहीं है जो कोई भी समाज था आदि मानव सूर्य की उपासना सबसे पहले किया था ये हम क्लियर कर ले सबसे पहले सूर्य को शक्ति देखा अरे रोशनी आ रहा तो लोग आश्चर्य करता था जो भी धरती मानव था हाँ और उसकी पूजा करने लगा तो जो भी आदि मानव रहा है वो सूर्य की उपासना बहुत पहले से करते रहे और कलांतर में बदलता रहता है। आप नॉर्थ ईस्ट का इतिहास देखिएगा कहीं अरुणाचल में हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं तो कहीं नॉर्थ ईस्ट के दूसरे बारे में सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं कहीं असमिया बोलते हैं तो ये भाषा तो लोग हर जगह का है मिक्स होता गया बंगाली प्रभाव रहा तो कहीं अंग्रेज का प्रभाव रहा इस तरह से हुआ तो कल इस पर्व में अभी जो छठ का पर्व है उसमें हो सकता है उत्तर भारत का और एक दर्शक हम पहले फोन ले लेते हैं हेलो हेलो আপুনি কোনে ক'লে ক'ৰ পৰা ক'লে মই মোহাম্মদ আলী কৈছোঁ জালুকবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক ইয়াতে যোনটো সূৰ্য দেৱতাৰ উপাসনাৰ মানে হেৰিটো চলি আছে ডিছকাছটো হয় মানে মই ভাবোঁ যে অকল পূজা কৰিয়ে মানে সূৰ্যৰ হেৰি উপাসনা কৰিলে কি তাৰ কি সূৰ্যৰ পোহৰৰ কোনটো বেছি হয় নেকি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ আৰ পি সোণী ডাঙৰীয়াৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অকল পূজা কৰিলেই সূৰ্যৰ যিটো আৰাধনা বা সূৰ্যৰ আৰাধনা কৰি পূজা কৰাৰ পিছতেই যেটো আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ বৈজ্ঞানিক যিটো লাভালাভ সেই লাভালাভটো বেছি হয় নেকি তেনেকুৱা নিশ্চিতভাৱে সেই বিষয়ে আপুনি জনাব আমাক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি চাই ল'ব বিচাৰিম এই সন্দৰ্ভত ফ্ৰণ্টেড টিভিয়ে যুগুতাই ওলোৱা আন এক বিশেষ প্ৰতিবেদন छठ पूजा के दिन सूर्य नमन का महत्व वर्षों से चला आ रहा है लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों मनाया जाता है छठ व्रत आइए हम आपको बताते हैं छठ व्रत का इतिहास के पन्नों में अगर झांके तो मुगल शासक औरंगजेब का नाम छठ पर्व से जुड़ा हुआ है दिवाली के ठीक 6 दिन बाद मनाए जाने वाला पर्व छठ महापर्व ये पर्व हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है मुगल शासक औरंगजेब ने भी इस पूजा को स्वीकारा था औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्य पूजा की माना जाता है कि तभी से ये दिन छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध है आज जब हमारा भारतवर्ष जिस समय हम उसे अपने मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था उसके बाद जब विदेशियों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद जब इन लोगों ने हमारे देवी देवताओं को मतलब छूने का प्रयास किया उस समय क्या हुआ कि जो है जब ये उन्हें छूने के प्रयास किया तो उस समय जो है ये इनका भी जो मतलब विनाश हो गया और तब धीरे धीरे ये लोग भी जब यहाँ आए और जब हम उनके बारे में जो है इनकी जो शक्ति है या जो इनके अंदर जो प्रभाव है उस प्रभाव को देखते हुए इन लोगों ने भी धीरे धीरे उनकी पूजा और आराधना करनी शुरू कर दी और इसके पश्चात जो है कारण से सभी लोग धीरे धीरे जो सूर्य षष्ठी के व्रत का जो है मतलब प्रचलन हुआ और सभी लोग छठ पूजा करने आरम्भ कर दिए जो है इसकी मान्यता जहाँ तक मैं जानता हूँ ये शुरू हुई महाभारत काल से माता कुंती जो थी ये सूर्य की उपासना करके उन्होंने कर्ण को पाया था और सूर्य की पूजा उन्होंने की थी और कर्ण भी जो थे वो भी सूर्य के पुत्र थे वो भी इस पूजा में विश्वास उनका था काफ़ी पूजा करते थे तो मान्यता वहीं से शुरू होती है एक बार जब औरंगजेब मंदिर और मूर्तियों को तोड़ता हुआ औरंगाबाद के एक सूर्य मंदिर में पहुंचा और उसने अपने साथियों को
सूर्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इस कथन को सुनकर सूर्य भक्तों ने औरंगजेब से इस मंदिर को न तोड़ने का आग्रह किया और इससे जुड़ी सभी कथाओं को बताया। औरंगजेब ने लोगों की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना और गंभीरता से कहा कि अगर सचमुच हिंदुओं के सूर्य देव में शक्ति है तो वे मंदिर के प्रवेश द्वार को पूर्व से पश्चिम की ओर करके दिखाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। माना जाता है कि श्रद्धालुओं की प्रार्थना पर रात भर में मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया। औरंगजेब सूर्य भगवान की इस शक्ति को देखकर हैरान रह गए। इसके बाद उसने इस पूजा के महत्व को स्वीकारा और प्रत्येक छठ पूजा पर वह नियमित रूप से वहां जाकर सूर्य आराधना करने लगे। ऐसा है कि छठ पर्व का इतिहास ऐसा है कि औरंगजेब जब भारत पर आक्रमण किया तो लूटपाट करने लग गया, मंदिरों को तोड़ने लग गया और तमाम तरह का अत्याचार करने लग गया। ऐसे करते करते जब वो एक सूर्य मंदिर के पास में आया, सूर्य मंदिर को तोड़ने के लिए ये किया तो लोगों ने ये मना किया कि भाई सूर्य मंदिर को मत तोड़िए, इसकी महिमा बहुत अपरंपार है, सूर्य की महिमा बहुत अपरंपार है। तो उसने लूटपाट बंद करके और सूर्य मंदिर को छोड़ दिया। उसी समय से ये सूर्य की उपासना वहाँ शुरू हो गई। मतलब उनको भी मालूम हो गया। हाँ, उनको भी मालूम हो गया कि सूर्य की महिमा जो होती है बहुत अपरंपार है। और सारे सूर्य इस समय पृथ्वी पर देवता कौन है? एक साक्षात देवता जो है वो सूर्य है। सूर्य की उपासना होती है। सूर्य ये छठ पर्व जो है वो तो सूर्य की उपासना का ही पर्व है। छठ मैया इनको इसलिए बोलते हैं, इनको कभी परंपरा में इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन स्कंद माता को नाम सभी उच्चारित नहीं कर करके उनकी सूर्य के अस्ताचल में और उदय होने के समय में इनके अर्घ्य दिया जाता है। इनकी इसलिए षष्ठी तिथि और सप्तमी का अर्घ्य पड़ता है, इसलिए इनकी छठ मैया बोला जाता है। ये बोलचाल में लोकाचार भाषा में इनकी माता बोल करके कह दिया जाता है। कई समाज में इसको सूर्य के भगवान का अर्घ्य मानता है, कई समाज में इनको स्कंदी माता का कर माना जाता है, इसलिए इनको छठ माता कहा जाता है। এয়া আছিল আমাৰ আন এক প্ৰতিবেদন আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ লোককথা বা লোকবিশ্বাসত কি ধৰণে সূৰ্য দেৱতাক উপাসনা কৰা হয় আৰু ছট পূজাৰ যি ঐতিহ্য বা ছট পূজাৰ যি মাহাত্ম্য তাৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে উল্লেখ কৰিছে ভক্তবান ৰাইজে। আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈকে। ডক্টৰ আৰ পি সোণী ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে আমাৰ এগৰাকী দৰ্শকে ফোন কৰিছিলে যে কেৱল পূজাৰ মাধ্যমেৰে সূৰ্যক উপাসনা কৰিলে বৈজ্ঞানিক যি লাভালাভ বা যি গুণ সেই গুণ লাভ কৰিব পাৰি নেকি? আমাৰ সাইন্টিফিকলি এইটো নহয়, আমাৰ সাইন্টিফিকলি আমি কওঁ ডেইলি কৰিব লাগে, কিন্তু পূজা মাজেদি এইটো বস্তু আনিলে কি হয় আপুনি চাওক, যদি আপোনাক মই কওঁ ডেইলি আপুনি ছান এক্সপ'জ কৰিব, হয়তো আপুনি গা পা নোধোৱাকৈ এনে ৰ'দত বহি যাব। যদি মই কওঁ নহয় আপুনি সূৰ্যক নমস্কাৰ কৰক বা তুলসী গছত বা বৰগছত আপুনি জল হেৰি কৰিব, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? ভক্তিভাৱে আহিব, গা পা ভালকৈ ধুব, চাফা কৰিব। সাইন্টিফিকলি এইটো এটা ভাল বস্তু না, আপোনাৰ যিমান বেক্টেৰিয়া আছে ডেড স্কিন আছে ওলাই যাব, তাৰপিছত যদি এইটো আহে এইটো মোৰ বেনিফিচিয়েল। তো মই এইটো ভাবোঁ বিভিন্ন কি একচুৱেলি ধৰ্মৰ কথা আৰু বিজ্ঞানৰ কথা দুইটা কথা আছে। মানুহ কেতিয়া কথাটো মানে যে ধৰ্ম এটা ভয় হয়। আজি বহুত আগৰ পৰা সূৰ্য নমস্কাৰ এটা পদ্ধতি আছিল, মানে আমাৰ দুটা চিভিলাইজেশ্যন, ৱেষ্টাৰ্ণ চিভিলাইজেশ্যন এণ্ড আৱাৰ কালচাৰ। আমাৰ কালচাৰত এইটো আগৰ পৰা যোগ প্ৰাণায়াম সূৰ্য নমস্কাৰ এটা বিধি আছিল। এইটো আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ কি সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব লাগিব, এটা যোগৰ এটা আছিল বিধি আছিল, লেকিন আজিতো কোনো নকৰে। তো এইখন বিধি আমাৰ এইটো পৰম্পৰা চাই বিধি বিধান আছিল আৰু আমাৰ যিটো যোগৰ এটা পদ্ধতি আছিল সেই পদ্ধতি আমি পাহৰি গৈছিলোঁ। তো আমাৰ যিটো পুৰাতন পদ্ধতি আমি পাহৰি গৈছোঁ, সেইটো পুৰাতন পদ্ধতিটো কেতিয়া আমাৰ মনত আহিব? আজি আমি যদি পূজা কৰোঁ তো পূজাটো কি আছে সেইখন এটা স্মৃতিত বাৰ বাৰ আমাৰ মেমৰি ষ্ট্ৰাইক কৰে। তো আমাৰ স্মৃতি যেতিয়া হ'ব কি আমি ছট পূজাত যাম, ছট পূজাতে কি মাহাত্ম্য আছে, তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আমি ধৰ্মৰ লগত বস্তুটো যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহ কি হয় ধৰ্ম ভিতৰটো হয় অলপ কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়ে। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आजकल विदेशों में भी जो यूरोपीय कंट्री है, पश्चिम देश हैं, वहाँ पे भी जो पुरानी चीज़ें हैं उस पर रिसर्च हो रहा है। हम लोग जितना बहस कर दे, लेकिन अब नेचुरल अब खाद की बात कर रहे हैं, जो यूरिया खाद होता है, वैज्ञानिकों ने भूख मिटाने के लिए यूरिया खाद किया और खेती का उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन उससे अमेरिका में बंजर जमीन हो गई। अब वो लोग जैविक खाद की ओर जा रहे हैं, यानी जो खाद गोबर का खाद होता है, जैविक खाद होता है, जो भारत में पनप रहा है। इसीलिए गौ पालन होता था, गौ का जो गोबर होता था उससे खेत में डाला जाता था और उसके जो उत्पादन होते हैं चाहे गेहूँ चावल कोई भी, वो उसका नुकसान शरीर को नहीं होता है। तो इसी तरह से पुरानी चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है कि ऐसा पुराने लोग क्यों करते थे। अब तुमको एक उदाहरण आपको हम बताता हूँ। असुर एक जाति है ट्राइबल्स की, और वो जो लोहा गलाने का उनका सिस्टम था
उनके सिस्टम को ही डेवलप करके हमारा जो सेल है, भारत का सेल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी ने भट्टी जो है उसी असुर ट्राइबल के सिद्धांत पर उन्होंने भट्टी को डेवलप किया। तो जो भी पुरानी चीज है वैज्ञानिक लोग उस पर अध्ययन करके उसको नया रूप देते हैं। जैसे भारत बहुत महान था और इसकी महानता हमारी जो पुरातन पद्धति है उसके अंदर में बहुत ही महान थे, लेकिन हम क्या हुआ कि अपने जो है अपने चीजों को भूल गए। कई भारत को सिरमौर कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व जो पूरे विश्व के अंदर में भारत एक अग्रणी था। लेकिन आज क्या हुआ कि हम क्या है कि पाश्चात्य देश का अनुकरण करते गए और अनुकरण करते करते अपने धर्म को, अपने रिवाज को, अपने परंपरा को भूल गए। तो आज आवश्यकता है कि हम वापस अपने धर्म को, रीति को, रिवाज को माने और उसके अंदर में अगर अति उत्साह, हम कहें अति उत्साह मैं कहता हूं कि अगर पूजा करें तो कहीं न कहीं इसी से शुरुआत होगी कि हम वापस अपने कल्चर को एडॉप्ट करें। डॉक्टर साहब भी शायद इस पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएंगे। इसमें एक डॉक्टर साहब बताएंगे, जैसे ये तो क्या है, प्रकृति पर्व है और प्रकृति जो है वृक्ष है। अब वृक्ष भी जो ना हम लोग ऋषि मुनि कहा करते थे एक वृक्ष 100 पुत्र के समान। तो इस सूर्य के प्रकाश से ही वृक्ष होता है। यहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा इस भारत में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, इसीलिए इतना जंगल है, वृक्ष है, हरियाली है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वृक्ष होने से क्यों आज ऑक्सीजन होता है। आज पूरे विश्व में चिंता है, वो औद्योगिकरण की मारधार में तो पेड़ कटवा दिए, यूरोप देश कटवा दिया, लेकिन आज उनको प्रदूषण और ये पर्यावरण का चिंता होने लगा, तब उनको लगा वृक्ष का ख्याल आया। जो हमारे ऋषि मुनि पहले कह चुके थे एक वृक्ष 100 पुत्र के समान, आज वो विदेश के विज्ञान भी कह रहे हैं। अब डॉक्टर साहब इस पे बताएंगे ज्यादा कि अब साइंस क्या कह रहा है इस प्रकृति या पर्यावरण के प्रति। और धर्म जो है, पूजा पाठ है, उसी प्रकृति के लिए है, उसी की रक्षा के लिए है और उसी को बताने के लिए है। डॉक्टर साहब देखिए, सनलाइट का तो आप सभी जो लोग जानते हैं, सूरज के बिना जीवन नहीं है। अभी देखिए जितना आप बोल रहे हैं पोल्यूशन, एनवायरमेंटल, जितना भी आपका ये जो हो रहा है पोल्यूशन, वैसे अभी क्या बोल रहे हैं, अभी ग्लेशियर का वो कम गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सभी कुछ हो रहा है। और तो अभी जैसे कि सूरज का, जैसे कि आप साइंटिफिक जैसे कि लेते हैं तो बीमारी में इसका उपयोग है। स्टरलाइजेशन, जैसे कि आप पहले के लोग क्या है कि नदी का पानी पीते थे, अभी नहीं पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको गंदा करते हैं। जितना भी सैलवेज होता है, ग्रेवेज होता है, हम लोग सब उसमें डाल देते हैं। तो नदी का पानी कैसे स्टरलाइज होता है? कोई पहले का आदमी नदी का पानी पी करके, झील का पानी पी के बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन आज के दिन में पड़ जाता है। कोई नहीं पीता है, बोतल पानी सब कोई पीना चाहते हैं आजिकाলি। दर्शक আছে ফোন লাইনত। হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক, আপুনি কোনে ক'লে, ক'ৰ পৰা ক'লে? আমাৰ ইটানগৰৰ পৰা বীৰেন চক্ৰৱৰ্তী কৈছোঁ। হয় কওক চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া। মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ছট পূজাই হওক, দুৰ্গা পূজাই হওক বা যিকোনো পূজাই হওক, পূজাক আপুনি এইটো বিজ্ঞানৰ দ্বাৰা এইটো পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব জানো? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে। সেই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। পূজাক বিজ্ঞানৰ সৈতে ঠিক তুলনা বা সম্পৰ্ক এটা থকা বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকলে কৈছে। এটা আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিবোৰ ৰীতি নীতি আছে, ৰীতি নীতিৰ লগত বা আমাৰ যি ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে, শাস্ত্ৰসমূহৰ লগত বিজ্ঞানসন্মত কিছু হ'লেও মতামত কিছু পৰিমাণে থকা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ প্ৰসংগক্ৰমে উত্তৰ দিব আমাৰ অতিথিসকলে। মই সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ চৰ্মৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ আৰ পি সোণী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰি আছিলে যিটো আমাৰ ধৰক মানে তাৰমানে আগৰ মানুহবিলাক যিবিলাক ধৰক আমাৰ ঝিল, তালাব, নদীৰ পানী খাইছিল, কেতিয়াও গা বেয়া হোৱা নাছিল, কেতিয়াও বেমাৰ নহয়। কিন্তু আজিকালি হয়। আজি কিমান পলিউশ্যন হৈছে, ইমান গ্লিছ লেভেল, লেতেৰা পানী চব আমি তাতে পেলাওঁ, জাবৰ চব নদীতে পেলাওঁ। কিন্তু এই পানীটো কেনেকৈ ষ্টেলাইজ হয়? সেইটো ছানৰাইজৰ পৰা হয়। সূৰ্যৰ পৰা যিটো প্ৰকাশ ওলায়, যিটো ৰে ওলায়, रेडिएशन ওলায়, सूरज की रोशनी होती है, उससे ही वो स्टरलाइजेशन होता है, जो कि वो आदमी पानी पीता है फिर भी बीमार नहीं होता है। लेकिन आज के दिन में तो नहीं पी सकते हम। तो शरीर हमारा क्षमतावान अब नहीं है, घट गया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सुविधा भोगी हो रहे हैं, इसलिए वो शरीर भी हमारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे पहले के दिनों में इतना आपको लिकोडर्मा जो बोगाचरा में व्हाइट स्पॉट का पेशेंट नहीं मिलता था, लेकिन आप देखिए आजकल पॉपुलेशन उसका बढ़ गया। पहले 1% था, अभी 5 to 6% हो गया है। इसका मेन कारण है पॉपुलेशन बढ़ गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, पोल्यूशन बढ़ गया एंड फूड अल्ट्रेशन। फूड अल्ट्रेशन मतलब कि जो वेजिटेबल्स हैं हम लोग सब आर्टिफिशियल खाद से फर्टिलाइजर से बनाते हैं, तो दे आर मोर डेंजरस, मोर पॉइजनस टू आवर हेल्थ। এইখিনিতে আমাৰ এগৰাকী দৰ্শকে ফোন কৰিছিলে আৰু বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। তেখেতে জানিব বিচাৰিছে যে পূজাৰ লগত বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্ক আছে জানো প্ৰকৃততে? আছে, এইটো আছে। আমি তো এখনে ডিছকাছ কৰি আছোঁ, বহুত দেৰিৰ পৰা ডিছকাছ কৰি আছোঁ। বিজ্ঞানৰ পূজা আছে, কিয় আছে কি আজি মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ। এই কাৰ্তিক মাহত আমলা মানে আমি যিটো কওঁ, এইটো আমি পূজা কৰোঁ। কিয় পূজাটো কৰোঁ? আজি কিমান এইটো এরকম এটা ফ্ৰুটফুল ফ্ৰুট আছে কি যেটো খোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কোনো এটা ৰোগে নহয়, লেকিন মানুহক আজিকালি কি কৰিলে নাখায়। কি খায়? আজিকালি তো ব্ৰেড খায়।
তো আমি এইটো কৈ আছোঁ কি আমি যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ যিটো আমি এডাপ্ট কৰিছোঁ সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ এডাপ্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল কি আমি আমাৰ জিনিছখন পাহৰি গৈছোঁ আমি যিটো আমাৰ জিনিছ যেতিয়া আমি পাহৰি গৈছোঁ আমাৰ যিটো আছিল আমাৰ যিটো পৰম্পৰা আছিল চাই আমাৰ যোগ আছিল আমাৰ আয়ুৰ্বেদ আছিল চাই আমাৰ বিজ্ঞান আছিল আমি পাইছোঁ কিয় আমাৰ পূৰ্বজ বৈজ্ঞানিক আছিল যিয়ে ৰীতি কিয় নকওক যিয়ে নিয়ম কিয় নকওক যিটো পূজাই কিয় নকওক সেইটো বিজ্ঞান সন্মত আছিল আৰু সেইটো আমাৰ লাভ আছিল লেকিন আজি আমি নামানো আছে এই কাৰণে আমাৰ বেমাৰটো বেছি হৈ আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি এতিয়া শেষৰ মুহূৰ্তত উপনীত হৈছোঁহি আপোনালোকক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানত আহি অংশ লোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কলাৰসকলক আপোনালোকেও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আৰু যিহেতু প্ৰকৃতিৰ পূজা ছট পূজা আৰু সূৰ্যক আৰাধনা কৰা হয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ উলহ মালহ গুৱাহাটী মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এয়াৰচেল পাব্লিক কানেক্টৰ পৰা মই শান্তনু মহন্তই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ This program is brought to you by Aircel, your world of possibilities. Aircel Public Connect.